Hello everyone. Today we will see the autonomous nervous system, that is a part of your pharmacology. Okay. So basically, before going for the nervous system, we will just revise the our previous lecture. So in our previous lecture, we learn about pharmacology. What basically the pharmacology is, right? So what is pharmacology? It is a branch of medicine, okay, that concern with uses, effects and the mode of action. यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं basically uses, effect and mode of action of the drug. The name itself, they have the idea. Pharmacon means drug and logy, that is co-logy, that is the logy is the study. Okay, so this is how the word pharmacology came from. So basically, what is the pharmacology? It is a branch of medicine that is concerned with uses, effect and the mode of action of the drug. Okay, and then we also discussed, there are two lectures. One is about the pharmacokinetics and another is about the dynamics. So we already done this two lecture, that is called pharmacokinetics and another is pharmacodynamics. Okay, so what is the pharmacokinetic means? Okay, so pharmacokinetic is whenever you take the drug, okay, this drug is going to be absorbed and then it distributed, and after that it will go to the cell and where there is a metabolism. तो आपके बॉडी के सेल वो ड्रग्स ले लेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म करेंगे और जो चाहिए दैट इज यूज एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज एक्सक्रीटेड. सो व्हाट इज काइनेटिक? इट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के बाद क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और लास्ट में क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन. ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स. ओके, नाउ व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स? फार्माकोडायनामिक्स इज द, it's a molecular or biochemical or you can say physiological effect of the drug. It is basically the effect of drug or you can say mode of action of the drug. Okay, कौन सा? molecular or biochemical or you can say physiological. Okay, now in pharmacology you cannot directly study about the drug. यानी हम लोग अगर फार्मैक पढ़ना है, lot of people think that चलो हम लोग ड्रग्स पढ़ना चालू कर देते हैं. No, in pharmacology you cannot directly study about the drug because if you see the national list, there are almost like thousands of the prescription drug, right? And if you remember, okay, there is a national list of essential medicine. In national list of essential medicine in India, as per 2011, almost there are like 348, approximately like 348 drugs are there in the national list of essential medicine. And after that, some of the drugs they are deleted and some of the new drugs they are added. Like in 2015, approximately 76 new drug added, and like not 76, more than that, I guess it is 106 new drugs are added and 70s are deleted. Okay, तो ये list modify होते रहेगा, right? And then you have approximately 376 drug in case of national list of essential medicine. And if you try to remember that drug, you can remember like 10 drug or 20 drugs or you might end up mixing. तो आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे? आप एक ड्रग या एक क्लास ऑफ ड्रग याद रख सकते हैं, लेकिन आप at one time you are a human, you are not basically the computer, right? So basically what happened, you will end up into the mixing up. तो क्या करना है? What is the best thing? What we should do? What is the best thing? So best thing is what? First you need to understand the system. First you need to what? Understand the system where the drug work. तो पहले क्या करना है आपको? You need to understand the system. You need to understand the system. Okay, then where it is going to be work. वो system देखना है आपको where the drug is working. कोई भी सिस्टम हो सकता, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हो सकता,
राइट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो सकता, डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता, राइट. सो दीज आर काइंड ऑफ सिस्टम. वो पहले आपको सिस्टम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. उसके बाद उस सिस्टम का आपको फिजियोलॉजी पढ़ना है. क्या पढ़ना है आपको? उस सिस्टम का फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, राइट. तो उसके बाद उस सिस्टम का फिजियोलॉजी पढ़ो, ओके. उसका बायोकेमिस्ट्री पढ़ो, ओके. और फिर उसके डिजीज पढ़ना है, ओके. So before starting any drug, what you have to do? You have to understand the particular system. कहाँ जहाँ आपको ये ड्रग यूज करना है, उस सिस्टम का फिजियोलॉजी पढ़ो, उस सिस्टम का आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, ओके. उस सिस्टम के बहुत सारे डिजीजेस पढ़ने हैं. फिर आपको ड्रग का, देन यू टुक द ड्रग and started reading the action and reaction of the drug. Started action and the reaction, or you can say interaction of that drug. Interaction of that particular drug, okay, on that particular system. ये सब होने के बाद then start the memorization of that particular class of the drug, okay. उसके बाद आपको memorization करना है, यानी आपको classification पढ़ना है, right. So उस particular drug का, right. So whenever you are starting the memorization of classification of that particular drug, at that time like memorization क्या करना है आपको? Name of the drug, class of the drug. सबसे important दो चीजें याद रखनी है आपको. Name और what is the name of receptor where it is acting. क्या क्या पढ़ना है आपको उस ड्रग के बारे में? उसका नाम और उसका रिसेप्टर, जहां वो बाइंड होता या जहां वो एक्ट होता. सो thousands of drugs are there, you cannot remember each and every drug. तो आपको क्या करना है? पहले तो जो सिस्टम पे वो एक्ट करता है उस सिस्टम पढ़ना है, सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़नी है, उसके सर्कुलेशन, उसकी बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है आपको, सिस्टम की थोड़ा बहुत एनाटॉमी का पार्ट भी पढ़ना है आपको, राइट. एंड देन स्टार्टेड अगेन लर्निंग द डिजीजेस, क्योंकि आपको मैक्सिमम ड्रग कहाँ यूज करते हैं हम लोग? डिजीज में यूज कर सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ लाइक डायग्नोस्टिक ड्रग हम लोग क्या करते हैं? डिजीज में भी यूज कर सकते, डिजीज में ही ज्यादा यूज करते हैं, राइट. तो पहले आप ड्रग ले लो, उसके एक्शन और इंटरेक्शन पढ़ लो, उसके बाद मेमोराइजेशन स्टार्ट कर दो. सबसे इंपॉर्टेंट मेमोराइजेशन में आपको नाम और कहाँ वो बाइंड होता है रिसेप्टर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन मेक योर ओन नोट्स. आफ्टर दैट मेक योर ओन नोट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ स्टूडेंट, उनको लगता है कि चलो भाई अभी पढ़ लिया हमको याद आ जाएगा. नो, इट्स नॉट रियली पॉसिबल. लाइक व्हेनेवर यू आर रीडिंग द चैप्टर इज अराउंड लाइक 10 pages, and whenever you read it, you have to concise it. You have to concise it as per your knowledge or as per your grasping. concise करके आपको किस तरह से लिखना है जो आपको important लगता है, ये जो आपको लगता है कि नहीं ये बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, राइट. कोई चीज एक्सेप्शन वाली चीजें देखो, ओके. कोई भी एक्सेप्शन वाली चीजें हो वो ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, राइट. कि ये सारे ड्रग का सेम एक्शन है, लेकिन ये एक ऐसा ड्रग है इसका कुछ अपोजिट एक्शन है, तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन. सो आपको नोट्स में कंसाइज करके लिखनी है बेसिकली नोट्स, और उसमें आपको एक्सेप्शन वाली चीजें लिखनी है, आपको उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने हैं, राइट. और क्या कर सकते हैं आप, राइट? ट्री डायग्राम बना सकते हैं, ओके, चार्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसा? कंसाइज में, जो आप याद कर सके. बिकॉज राइट नाउ इफ यू आर स्टडिंग दैट पर्टिकुलर ड्रग और पर्टिकुलर चैप्टर, तो अभी आपको बहुत टाइम है, बट वेन एवर यू आर गिविंग द एग्जाम एट दैट टाइम तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि विद इन 2 or 3 days यू हैव टू रिवाइज द होल चैप्टर. सो जितना कम और इम्पोर्टेंट आप लिखोगे नोट्स में, आपके नोट्स में, ओके, उतना आपको फायदा रहेगा. डोंट ट्राई टू रिमेंबर और राइट ऑल, because I all the time say every time short is sweet, okay. जो भी चीज आप शॉर्ट में लिखोगे वो बहुत अच्छी रहेगी आपको मेमोराइज करने के लिए, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू प्लान फॉर द स्टडी. नाउ द चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट टुडे इज व्हाट? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. सो आज हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. सो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, before going from the autonomous nervous system, we will just have a look
on basically the central nervous system. Okay, we will have the look on the central nervous system. So central nervous system किस तरह से form होगा हम लोग देखते हैं. So nervous system, human का nervous system जो है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं. Okay, so the nervous system, okay, so this nervous system, it is divided into central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system and peripheral nervous system. अगर आप देखोगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर एटोनॉमस नर्वस सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है. अब वो पढ़ने के लिए, उसके पास जाने के लिए हमको सारी चीजें पढ़नी है. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम विच इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, कौन कौन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा. ब्रेन आएगा और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आएगा, राइट. सो द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ह्यूमन का. अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? ओके, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व. Cranial nerve and spinal nerve. What is the function of your nervous system? Okay, so basically the nervous system, it is like जो आपका nervous system है. Okay, whenever we are looking the nervous system, it is about the brain. It is about the brain. क्या काम है आपके nervous system का? Basically the nervous system control center. They act as a कंट्रोल सेंटर. आपका नर्वस सिस्टम क्या है? कंट्रोल सेंटर है. यहाँ सारे कंट्रोल सेंटर आपके हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में. क्या फंक्शन है इस नर्वस सिस्टम का? रिसीव इंफॉर्मेशन एंड देन एक्ट. क्या फंक्शन है कंट्रोल सेंटर का? रिसीव इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लो और उसके बाद एक्ट अकॉर्डिंगली. यानी क्या करता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? बहुत सारे सेंटर इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और फिर कोऑर्डिनेट और उस तरह से एक्ट कोऑर्डिनेट करेगा, राइट. सो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट, एक्ट. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम में मैंने पहले बोला था कि आपको दो पार्ट है. वन इज कॉल्ड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा आ गया? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? बेसिकली they are control center. They are basically the control center. Okay, ये भी आपके control center. यहाँ पर जो रिसीव इंफॉर्मेशन होगी आपकी कहाँ होगी? ब्रेन में इंफॉर्मेशन रिसीव होगी और स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन रिसीव होगी और फिर उसका कोऑर्डिनेशन होगा. फिर इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा, राइट. सो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल सेंटर. इस कंट्रोल सेंटर में इंफॉर्मेशन रिसीव करो और कोऑर्डिनेट करो. तो सबसे पार्ट कौन प्ले करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल का और कोऑर्डिनेशन का. अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें जो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व है, इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन, ये कम्युनिकेशन लिंक है. दिस इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द बॉडी. तो ये जो आपकी बॉडी है, basically this is the body. This body, ये बॉडी का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो बीच वाली चीजें है ये, this is called peripheral nervous system. So peripheral nervous system, it is a connecting link between your body and your central nervous system. So central nervous system command center है आपका brain and spinal cord. ओके, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? कमांड आती किधर से? स्किन से कमांड आ रही है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको कनेक्ट करके आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन के पास लेके जाएगी. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट. किससे? बाय विद द हेल्प ऑफ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व. विद द हेल्प ऑफ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व. सो जो नर्व्स है उनको दो रूट रहते हैं. वन इज कॉल्ड sensory root and another is motor root. Another is which one? That is called the motor root. Okay, sensation, motor. Okay,
व्हेन somebody is looking at you, वो आपकी तरफ देख रहा है, बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ देख रहा है, वो सेंसेशन है। तो सेंसेशन आएंगे, उसके बाद जैसे ही वो आपकी तरफ देखना चालू करेगा तो आपका एक एक्शन होगा उसकी तरफ, तो आप एक तो हंसोगे या आपको गुस्सा आएगा बेसिकली, राइट। तो ये क्या होगा, वेन एवर, या आप उसको पूछोगे, सो वेन एवर यू मूव योर बॉडी, वेन एवर यू स्माइल, देर इज अ मूवमेंट, देर इज अ मूवमेंट, ओके। सो सेंसेशन, रिफ्लेक्स में क्या आएगा, मूवमेंट। तो रिफ्लेक्स बोलो या आप क्या बोल सकते हो, इफेक्ट, कोई भी सेंसेशन का इफेक्ट। सो सेंसेशन इट इज द अफेक्शन, जो एफरेंट रूट आ रहा है, एफरेंट रूट लेकर आएगा, ओके। सेंसरी रूट, उसको एफरेंट डिवीजन बोलते हैं। और मोटर जो है वो इफेक्ट देगा, मोटर क्या है, इफेक्ट देगा। somebody looking at you, this is the sensation, and then you are smiling, this is what the efferent division, okay. So the motor root or motor division is the efferent division or efferent root. तो ये जो cranial nerves है आपके या स्पाइनल नर्व, इनको दो रूट रहते हैं, एक तो सेंसरी रूट या दूसरा है मोटर रूट। तो सेंसरी रूट से आपको सेंसेशन आएंगे, राइट, ये नर्व्स में, और उसके बाद मोटर रूट से क्या होगा, एक्शन जाएगा, राइट। सो सेंसरी रूट से क्या होगा, दैट इज एफरेंट, और मोटर रूट विच इज द इफरेंट, इफरेंट यानी इफेक्ट, इफेक्ट, ओके। वेन एवर समबडी इज लुकिंग एट यू, तो ये हो गया सेंसेशन, आपकी तरफ आ गया, आपने देख लिया, और फिर आप क्या करोगे, आप उसको स्माइल करोगे। सो दिस स्माइल इज बेसिकली द मोटर एक्शन, दिस स्माइल इज बेसिकली द मोटर एक्शन। कुछ भी हो सकता, आप मूवमेंट कर सकते, या आपको हो सकता है आपके सामने टाइगर आ गया हो, राइट। सो इफ यू लुक एट द टाइगर, तो आपकी आंख ने उसको देख लिया, तो सेंसेशन आ गया, राइट, ओके। तो आपके सेंसरी रूट ने काम कर लिया, फिर आप डर गए। सो वेन एवर यू हैव अ फीवर, तो क्या होगा, आप हो सकता है इधर भागोगे या उधर भागोगे, तो दिस इज द मसल एक्शन। दूसरा हो सकता है आपको पसीना आ जाए, राइट, सो ग्लैंड आपका सिक्रेशन चालू कर देंगे काम। तो ये जो एक्शन है, ये कौन सी एक्शन है, मोटर इफेक्ट ऑफ योर क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तो है क्रेनियल नर्व और दूसरा है स्पाइनल नर्व, ओके। अब हम लोग जाते हैं this basically the central nervous system which is having the cranial and the not central nervous system, sorry, peripheral nervous system which is having sensory root and the motor root. So this peripheral nervous system, now it is divided into, ये तो सेंसरी रूट और एफरेंट रूट, ये इन नर्व के रूट्स के बारे में हम लोग बात करिए, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, राइट। ये इनके रूट से, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व के सेंसरी रूट और मोटर रूट है। अगर आप कोई भी नर्व का अगर आप क्रॉस सेक्शन लोगे, तो एक सेंसरी रूट आएगा, उसके बाद वो ब्रेन के पास जाएगा सीएनएस के बाद, और उसके बाद वहां से एक्शन आएगी, मोटर एक्शन आएगी, राइट। सो दिस इज बेसिकली द पेरिफेरल। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द कनेक्शन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द बॉडी है, जो आपके बॉडी पार्ट है, राइट। तो इसके ये दो रूट है। और नाउ दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम is divided or is classified into two. One is called autonomous nervous system, autonomous nervous system, and second is somatic nervous system. अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, एंड दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. This autonomic nervous system and somatic nervous system is almost related to the muscle, almost related to the muscle. तो मोटर इसमें आएगा, वो ज़्यादा उसका किस में आएगा, मोटर फंक्शन में उसका ज़्यादा रोल रहेगा. सो फॉरगेट अबाउट दिस मोटर फंक्शन, आप सिंपल याद रखो, peripheral nervous system is divided into autonomic nervous system and somatic nervous system. Autonomic nervous system, it is involuntary, and somatic, it is the voluntary. तो जब आप बेसिकली स्टेप्स पे चढ़ते हो या दौड़ते हो, तो आप आपके हार्ट को बोलते हो क्या कि चलो भाई मैं दौड़ रहा हूँ, तो अब तू हार्ट रेट बढ़ा दे,
या रेस्पिरेटरी रेट कम कर दे, बढ़ा दे। आप सो रहे तो आपके आपके हार्ट को आप बोलते हो क्या कि नहीं नहीं मेरा थोड़ा सा हार्ट रेट कम कर दो, मुझे सोना है करके? नो, वो ऑटोमेटिकली हो जाता, राइट। एंड दिस इज कंट्रोल, दिस आर इनवॉलेंट्री। तो ये कौन कंट्रोल करता है आपके बॉडी का? दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इनवॉलेंट्री, राइट। तो इसमें जो आएगा आपका विसरल मोटर वाली चीजें आएंगी। विच वन? visceral motor. So this visceral motor conduct impulse from central nervous system to, समझ लो आपके कार्डियक मसल। हाँ, कार्डियक मसल हो गए, स्मूथ मसल हो गए, आपके ग्लैंड के मसल हो गए, राइट। स्मूथ मसल या ग्लैंड के मसल, राइट। सो दिस इज योर विच वन? दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये सोमैटिक क्या है? सोमैटिक इज वॉलेंट्री। इट कंडक्ट द इम्पल्स, ओके, फ्रॉम अगेन ब्रेन, कंडक्ट फ्रॉम आपके सीएनएस से इम्पल्स आएगा, मोटर इम्पल्स। हम लोग कौन सा इम्पल्स आ रहे हैं? मोटर इम्पल्स। और किसको आएगा? वॉलेंट्री क्या है आपकी? वॉलेंट्री एक्शन कौन सा है? ब्रीदिंग इज नॉट रियली, हार्ट बीट इज वॉलेंट्री थोड़ी है। आपका ये जो स्केलेटल मसल का जो एक्शन है मूवमेंट का, ये क्या है? वॉलेंट्री, राइट। सो बेसिकली द स्केलेटल मसल के लिए जो इम्पल्स आ रहा है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो भी आएगा एफरेंट एंड इफरेंट। somebody is pinching you, जैसे ही उसने पिंच किया तो आपको पेन हुआ, पेन सेंसेशन आपके ब्रेन में जाएगा, और फिर आप पिंच करने वाले को हो सकता है उसको बाजू में करोगे या मार भी सकते हैं आप, राइट। सो दैट इज द इफेक्ट, दैट इज बेसिकली द इफेक्ट। लेकिन ये वॉलेंट्री, ये आप कर रहे हो बेसिकली, राइट। सो वॉलेंट्री इज बाय सोमैटिक एंड इनवॉलेंट्री इज बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट विल अगेन, हम लोग एक काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, राइट। Now this autonomic nervous system is again divided into sympathetic, parasympathetic. आपको पता होगा, one is called sympathetic nervous system, दूसरा है parasympathetic nervous system, और कोई है? एक और है, ओके, जिसको हम लोग लेस रिकॉग्नाइजेशन देते हैं हर वक्त, जिसके बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, उसको बोलते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ये सब ऑटोनॉमिक है, इनवॉलेंट्री है। तो अब देखो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली द सिंपैथेटिक? सिंपैथेटिक यानी हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। सिंपैथेटिक क्या है? बेसिकली you are doing some activity with energy expenditure, इसको बोलते हैं आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे आपके बुक में लिखा है मूवमेंट करना है, एक्टिविटी के वक्त, सो इट इज कॉल्ड फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, ओके। फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, ये है आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जहां पर आपकी कोई एनर्जी ज्यादा यूज नहीं होती, आप एनर्जी कंजर्व करते हो, यहां पर आप यूज करते हो और यहां पर आप एनर्जी कंजर्व करते हो, राइट। तो आपको अगर एनर्जी कंजर्व करना है, जैसे अभी ये कोविड-19 पीरियड में एवरीबॉडी इज मूव टुवर्ड द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, है ना। सब लोग आराम कर रहे हो, घर पे बैठ के, सोफा पे बैठ के टीवी देख रहे हो, राइट, कुछ नहीं कर रहे हो, मूवमेंट बहुत कम है। So this is what? Conservation of energy basically. So parasympathetic system, it is more related to the rest. It is more related to the rest. Or sympathetic is more related to the flight and fight. अब तो झगड़ा करने के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो sympathetic system का काम क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया, right? Now this both the system, they are कंट्रोल बाय योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की है ना ऑटोनॉमस, और दूसरा है सोमैटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री और सोमैटिक कैसी है? वॉलेंट्री है। तो 100% सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक लिए नर्व्स काम करेंगे। कौन से नर्व्स है आपके? क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर आपके पूरे बॉडी में जाएंगे, राइट। तो
if you see this nerve, this is your brain and this one is your spinal cord. This is your which one? That is called a spinal cord. तो आपका ये है cervical section, ये है आपका thoracic section, ये है आपका lumbar section और ये है आपका spinal cord का sacral, और उसके बाद में तो फाइलम टर्मिनली करके कॉर्ड आएगा. ओके, तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन. तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, राइट, द नर्व विच इज इन्वॉल्व इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दे आर बेसिकली थोरैकोलंबर. सो सिंपैथेटिक के लिए कौन से? थोरैकोलंबर नर्व काम करते हैं. ओके, सो दैट इज फ्रॉम T1 टू T12 है, फिर उसके बाद L1, L2, L3, L4, L5, ये पूरे आपके यहाँ से नर्व निकलेंगे, राइट, वर्टिब्रा के. सो अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम T1 टू L3, L4 तक जो नर्व निकलते हैं वो कौन से? आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसको रफली हम लोग बोलते हैं थोरैकोलंबर है. ओके, हियर द प्री गैंग्लियोनिक, तो यहाँ ये है आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर. सो your preganglionic fiber, they are short and the postganglionic fiber, they are long. So pre कैसे है? short है और post कैसे है? long है. So this is your which one? That is called sympathetic nervous system. अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके लिए भी आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर रहेंगे और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर रहेंगे. सो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दे आर बेसिकली लॉन्ग, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम एंड से उनको जाना है. सो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, दे आर, यहाँ लिखते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर दे आर लॉन्ग एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर दे आर शॉर्ट. ओके, ये किसका हो गया? आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके, सो कोई भी नर्व अपने गैंग्लियन फॉर्म होने के पहले एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर देगी, फिर यहाँ पर कौन सा रहेगा? दैट इज कॉल्ड न्यूरो रिसेप्टर, और यहाँ पर रहेगा उसका दैट इज कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. तो आपको क्या याद रखना है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट इज फॉर एक्टिविटी, एनर्जी एक्सपेंडिचर वाली है, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है इसका. सो उसके जो प्री गैंग्लियोनिक थोरैकोलंबर है, दे आर शॉर्ट एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक कैसे रहेंगे? लॉन्ग रहेंगे. पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक, दे आर लॉन्ग फाइबर and post ganglionic, they are basically the short fiber. So this is all about your which one. और ये जो है आपका एंट्रिक नर्वस सिस्टम, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इट इज़ लाइक लेस इम्पोर्टेंट, हम लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं है. तो हम लोग अभी क्या करते हैं? बेसिकली वी विल सी द प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर किस तरह से और कैसे अरेंज करते हैं और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, राइट. सो वी विल सी दैट. So sympathetic के कैसे? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, दे आर बेसिकली शॉर्ट एंड पोस्ट कैसे है? दे आर लॉन्ग. अब ये समझ लो, है आपका ब्रेन हो गया, राइट. सो और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है. दिस इज द ब्रेन, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, नाउ यहाँ पर ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, एंड देन पैरासिम्पैथेटिक and the sympathetic nervous system. Okay, parasympathetic nervous system ये एक हो गया, और दूसरा sympathetic nervous system. क्यों निकाला मैंने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ? क्योंकि इसका कैसा है? क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है और इसका कैसा है? थोरैकोलंबर. ओके, और आपको पहले ही पता है कि सिंपैथेटिक जो है, ओके, थोरैकोलंबर वाला, ये जो सिंपैथेटिक है, इसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, दे आर शॉर्ट, दे आर बेसिकली द शॉर्ट. तो हम लोग निकालते हैं. और ये जो आपका है दूसरा पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो वाला, इनके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो किससे है? लॉन्ग है. द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर लॉन्ग. ओके, सो पहले लेते हैं हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका प्री गैंग्लियोनिक. सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है इज चीफली विच वन?
okay, that is called acetylcholine. Acetylcholine is the chief neurotransmitter. आप ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का भी बोल सकते हैं. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का चीफ न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? दैट इज एसिटिलकोलिन. ओके, सो इफ यू सी अबाउट द parasympathetic nervous system, preganglionic fiber, okay, they release here acetylcholine. okay, फिर आपकी यहाँ से जो निकलेगा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. दिस इज विच वन? दैट इज कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियोनिक. यहाँ उसका सिनेप्स होगा एंड देन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा. दिस पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर विच इज कॉल्ड एसिटिलकोलिन. तो ये हो गया आपका कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का. सो कौन सा है न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटिलकोलिन. कहाँ एक्ट करता है वो? उसके लिए रिसेप्टर कौन से है? सो रिसेप्टर, ओके, दे आर कॉल्ड एम रिसेप्टर. दे आर कॉल्ड विच रिसेप्टर? एम रिसेप्टर और मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर. ओके, कहाँ होगा ये रिसेप्टर? वेरियस ऑर्गन लाइक हार्ट, स्मूथ मसल, ग्लैंड्स. ओके, हार्ट हो गया, मसल हो गए, स्मूथ मसल, ग्लैंड हो गए. यहाँ पर आपका कौन सा है? दैट इज कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब हम लोग देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, ये सारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर वो भी आपका एसिटिलकोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा. ये है आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सारे. और ये भी आपका कौन सा है? प्री गैंग्लियोनिक. और ये आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक. ओके, प्री गैंग्लियोनिक थोड़ा सा और बड़ा कर देते, पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटा हो जाएगा. राइट. नाउ हियर देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइबर्स in case of sympathetic nervous system. Majorly the first one they release the acetylcholine. और इसका जो important neurotransmitter, जैसे इसका कौन सा है? acetylcholine है, तो इसका important neurotransmitter जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर का, देखो लॉन्ग है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर का जो important neurotransmitter है that is called norepinephrine. that is called norepinephrine. ओके, एनी करके लिखते हैं हम लोग यहाँ पर. दैट इज कॉल्ड नॉरएपिनेफ्रिन. और ये कहाँ एक्ट करेगा? कौन से रिसेप्टर पे? अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर. कहाँ करेगा? एक तो अल्फा पे करेगा, नहीं तो बीटा पे करेगा. सो दिस इज योर विच वन? दैट इज कॉल्ड. तो देखो आपका पैरासिम्पैथेटिक एसिटिलकोलिन और आपका सिंपैथेटिक नॉरएपिनेफ्रिन. तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आपका काम करता है? तो ये हो गया आपका एक. दूसरा एक एक्सेप्शन है आपके इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में. ओके, सो दिस इन दिस एक्सेप्शन द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इन स्पाइट ऑफ रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन दे रिलीज द एसिटिलकोलिन. इसके जैसा ही काम करता है, दे रिलीज द एसिटिलकोलिन. तो इसीलिए इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? सिम्पैथेटिक है. तो सिंपैथेटिक पाथवे, लेकिन हम कौन सा पाथवे? कोलिन जैसा है, तो इसको सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक पाथवे. क्यों कोलिनर्जिक? क्योंकि क्या रिलीज कर रहा है? एसिटाइलकोलिन. ये है आपका कोलिनर्जिक पाथवे, पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक पाथवे, कोलिनर्जिक पाथवे. एंड सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक और नॉर एड्रीनर्जिक. इपिनेफ्रिन को हम लोग एड्रीनर्जिक पाथवे बोलते हैं. और ये क्या हो गया? सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक पाथवे. इस पाथवे में जाकर वो जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन रिलीज करेगा, वो कहाँ एक्ट करेगा? ऐसे सेम एम रिसेप्टर पे, मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एम रिसेप्टर. दिस एम रिसेप्टर कहाँ कहाँ एक्ट करते हैं? स्वेट ग्लैंड, पाइलो इरेक्टर मसल ऑफ हेयर फॉलिकल, पाइलो इरेक्टर मसल. ओके, वहां पर ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक पाथवे ऐड करते हैं. राइट. सो ये हो गया आपका एक्सेप्शन. ओके, नाउ दिस थर्ड वन
Pre-ganglionic fiber, they release the acetylcholine, and there is no post-ganglionic fiber. They release the acetylcholine, which stimulate the adrenal gland. Adrenal gland itself act as a पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. तो यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है नहीं, ये एड्रीनलिन ग्लैंड रिसीव करेगा और ये एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होने के बाद हार्मोन रिलीज करेगा. ओके, दे रिलीज द हार्मोनल, इसीलिए हम हार्मोन रिलीज करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इपिनेफ्रिन. कौन सा? दैट इज कॉल्ड इपिनेफ्रिन. तो हम लोग यहाँ पर फाइबर नहीं निकालते, इस तरह से लिखते, दैट इज कॉल्ड इपिनेफ्रिन, या इसको एड्रीनालिन बोलते हैं. एड्रिनल ग्लैंड, एड्रीनालिन. तो यहाँ पर तो पोस्ट ग्लैंडिक है. तो ये जो ट्रांसमिशन हो गया इसको कौन सा बोलते हैं? न्यूरो हार्मोनल पाथवे. न्यूरो हार्मोनल पाथवे. तो देयर इज नो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. तो हम लोग यहाँ लिखते, देयर इज नो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. ओके, सो द रिलीज द एड्रीनालिन, और ये एड्रीनालिन किधर जाएगा? ब्लड में जाएगा, क्योंकि हार्मोन को तो कैरी करने के लिए मीडिया चाहिए, दैट इज द ब्लड doesn't enter into the nerve. So there is no post ganglionic neuron. Okay, because medulla, adrenal का जो ये medulla है, itself act as a post ganglionic. And now whenever they release into the blood, okay, they act on, that is called your which one? Alpha or receptor. They act on your, that is receptor or beta receptor. किस पे act करते हैं वो? अल्फा और बीटा रिसेप्टर. कहाँ रहते हैं अल्फा रिसेप्टर? ऑर्गन पे रहते, राइट. सो वेरियस ऑर्गन, ओके, ट्रांसपोर्टेड. ओके, लेकिन ब्लड ट्रांसफर, ये हो गया आपका कौन सा है? थर्ड टाइप ऑफ. ओके, नॉरएपिनेफ्रिन, आपको याद रखना है, नॉरएपिनेफ्रिन ऑलवेज नीड नर्व टर्मिनल टू रिलीज. ओके, लेकिन एड्रीनालिन रिलीज होने के लिए आपको नर्व टर्मिनल की जरूरत नहीं है. देखा यहाँ पर एड्रीनालिन डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड. तो कुछ चीजें आपको इस तरह से याद रखनी है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? दैट इज कॉल्ड, ये होगी आपकी कौन सी? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक. एक आपकी कौन सी है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये हो गए आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर. दे रिलीज द acetylcholine. This acetylcholine they act on, ये मसल है, न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन पे ये एक्ट करेगा, राइट. और फिर क्या होगा? मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो ये हो गया आपका कौन सा? सोमैटिक. ये वॉलेंट्री है. दिस इज योर विच वन? सोमैटिक नर्व. और ये कौन सा हो गया आपका? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो इस तरह से आपको याद रखना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज हैविंग पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटिलकोलिन. और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेन न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉरएपिनेफ्रिन. लेकिन एक जगह नॉरएपिनेफ्रिन की जगह एसिटाइलकोलिन होता, और वो कौन सा है? दैट इज योर सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक पाथवे. और वो कहाँ एक्ट करता? स्वेट ग्लैंड एंड पाइलोइरेक्टर मसल. एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. मैंने पहले बोला था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलैक्सेशन करना है, आपको आराम करना है, एंजॉय द लाइफ, ओके, रेस्ट करना है. सिंपैथेटिक में आपको आराम नहीं करना है, आपको एक्शन करना है. लेकिन ये स्वेट ग्लैंड और पाइलोइरेक्टर मसल ग्लैंड, जस्ट सेम एग्जांपल आई एम गिविंग यू. व्हेनेवर यू लुक एट द एनी प्रीडेटर लाइक टाइगर और लायन, व्हाट हैपेंड देयर? एकदम से आपको क्या हो जाता? स्वेटिंग चालू हो जाएगा, राइट. एकदम आपके बॉडी पे गूज बम्प आना चालू, आप डर जाओगे बेसिकली, राइट. सो ये कौन सा एक्शन है तो सिंपैथेटिक एक्शन, राइट. पर कौन सा पाथवे? सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक पाथवे. यानी एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा है? स्वेट ग्लैंड और पाइलोइरेक्टर मसल पे एक्ट कर रहा है, राइट. तो सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड जो है आपका, खाने के वक्त का जो सिक्रीशन है, माउथ में सलाइवा हो रहा है,
आपके पेट में डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रेट हो रही है, ये आपका पैरासिम्पैथेटिक वाला है। लेकिन आप डर के अगर आपके इसमें अगर स्वेटिंग हो रहा है, आप दौड़ दौड़ के स्वेटिंग कर रहे हो, सो स्वेट ग्लैंड इज फॉर व्हाट, इट इज अ सिंपैथेटिक, इट इज द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो आपको ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर देयर इज अ स्वेटिंग, ऐसा होता है कि आपको कि आप आराम से रिलैक्स कहीं बैठे हो और आपको डर लग रहा है और गूज बम्प आ रहे हैं, नो, दैट्स द रेस्ट वन। सो रेस्ट में पैरासिम्पैथेटिक। और जब आप डर रहे हो या बहुत खुशी हो रही है आपको, एट दैट टाइम देयर इज अ दैट इज कॉल्ड, या सरप्राइज हो गया अचानक से, या अचानक से आपको कोई सामने आ गया, वी डोंट वांट दैट, राइट। सो दिस इज योर विच वन। या अचानक से मैंने बोल दिया आपको कि कल ही आपका फार्मेसी का या जीपार्ट का एग्जाम है, तो आप डर जाओगे और आप सीधे सीधे क्या हो जाएगा, देयर इज अ सिक्रीशन, ओके, स्वेटिंग हो जाएगा। सो ये सिंपैथेटिक एक्शन है। कौन सी एक्शन है ये, सिंपैथेटिक एक्शन। और एक मैंने और बोला आपको, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, सोरो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ही नहीं है यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो कौन से है ये, दे रिलीज द इंस्पाइट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एड्रेनाइलकोलिन, दे रिलीज द एड्रेनालिन इन ब्लड। सो एड्रेनालिन रिलीज होने के लिए आपको कोई नर्व वगैरह नहीं लगते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया आपका। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उनका फिर क्रेनियल आउटफ्लो, सैक्रल आउटफ्लो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, हाउ वी डिवाइडेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब आप देखिए पैरासिम्पैथेटिक जो है आपका, इसके जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, ओके, ये उनकी प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, उनकी सेल बॉडी किधर रहेंगी, सेंट्रल एक्सिस में। उनकी सेल बॉडी देखो किधर है, सेंट्रल जो आपका एक्सिस है वहाँ उनकी सेल बॉडी रहेगी। उनकी जो प्री गैंग्लियोनिक की सेल बॉडी, दैट इज इन द आइदर इन मेडुला बोल सकते हैं और इन द सैक्रल पार्ट, आइदर इन द मेडुला और सैक्रल पार्ट। ये सोमैटिक का हम लोग निकाल देते हैं यहाँ से, दिस सोमैटिक, ओके। सो इसका हम लोगों को पता है, राइट। सो इट इज अ क्रेनियो सैक्रल फ्लो बोलते हैं ना हम लोग पैरासिम्पैथेटिक का। तो उनकी कहाँ रहेंगी सेल बॉडीज, प्री गैंग्लियोनिक की, आइदर इन द मेडुला और इन केस ऑफ सैक्रल पार्ट, हो गया, ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक का। अब प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो आपका है, ओके, दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ सिंपैथेटिक का, ना क्रीनियम में है इनका सेल बॉडी, ना सैक्रल में है। तो सिंपैथेटिक के सेल बॉडीज किधर रहेंगी, इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं ना थोरैको लंबर पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं हम लोग इसको, थोरैको लंबर आउटफ्लो बोलते हैं इसको। और ये कौन सा है, क्रेनियोसैक्रल, पैरासिम्पैथेटिक का क्रेनियोसैक्रल हो गया आपको। नाउ दिस प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, ओके, दे कंटेन व्हिच न्यूरोरिसेप्टर, एसिटिलकोलिन। दिस एसिटिलकोलिन वर्क ऑन द गैंग्लियोनिक, ये देखो यहाँ पर क्या निकला है, एसिटिलकोलिन, दे वर्क ऑन द गैंग्लियोनिक सिनेप्स, ओके। और यहाँ पर जो भी आपके रिसेप्टर रहेंगे, ये जो गैंग्लियोनिक सिनेप्स है यहाँ पर निकोटिनिक रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है यहाँ पर, एन टाइप ऑफ रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड निकोटिनिक। दे ओनली ऑन न्यूरॉन, ये स्केलेटल मसल पे नहीं रहते, दे आर ओनली प्रेजेंट ऑन न्यूरॉन। निकोटिनिक रिसेप्टर दे आर ओनली प्रेजेंट ऑन द न्यूरॉन, एन टाइप ओनली प्रेजेंट ऑन न्यूरॉन, नॉट ऑन स्केलेटल मसल। देन स्टिमुलेशन ऑफ दिस एन रिसेप्टर, इनका जैसे ही स्टिमुलेशन हो जाएगा, देन देयर इज अ डीपोलराइजेशन वे हो जाएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक के। तो ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और ये आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है और ये आपका क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। यानी इन शॉर्ट, विदाउट कंफ्यूजन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन में से निकलेगी, इसका ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ओके, कहाँ रहेगा, एसिटिलकोलिन ACH, ये सिनेप्स में, यहाँ कौन से रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर है न्यूरॉन पे। फिर जैसे ही यहाँ पर निकोटिनिक रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा, क्या करेगा वो, डीपोलराइजेशन, क्या करेगा वो, डीपोलराइजेशन, और इम्पल्स फिर सामने जाएगा, एंड देन दे डीपोलराइजेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ओके, एंड दे दिस इज कॉजिंग द बेसिकली रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। यहाँ आके फिर किसको स्टिमुलेट कर रहा है, कौन सा रिसेप्टर, एम रिसेप्टर को। प्री गैंग्लियोनिक ने जो आपका एसिटाइलकोलिन किया था वो निकोटिनिक रिसेप्टर पे आया, यहाँ आके डीपोलराइजेशन हुआ, फिर वो इम्पल्स सामने गया, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन निकला और फिर वो किसने, कौन से रिसेप्टर ने लिया, एम रिसेप्टर। एम रिसेप्टर इन केस ऑफ
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके, यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके, यहाँ पर वो क्या रिलीज करेंगे, एसिटाइलकोलिन, और यहाँ पर देखो क्या रिलीज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द बेसिकली दैट इज कॉल्ड नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन। सो देखो यहाँ पर भी एन रिसेप्टर ही रहेंगे, हर जगह आपको एन रिसेप्टर रहेंगे, यहाँ तो एन रिसेप्टर है ही नहीं क्योंकि डायरेक्टली रिलीज हो रहे। यहाँ पर भी एन रिसेप्टर में एसिटाइलकोलिन आएगा, फिर एम रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन ही प्री गैंग्लिक, यहाँ पर एन रिसेप्टर में एसिटाइलकोलिन आएगा, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक में क्या आ रहा है, ठीक से देखो, दैट इज कॉल्ड नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन, दैट इज कॉल्ड नॉर एड्रेनालिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ये जो है सिंपैथेटिक कोलिनार्जिक पाथवे, कोलिनार्जिक क्योंकि नॉर एपिनेफ्रिन की जगह क्या रिलीज किया उसने, दैट इज कॉल्ड एसिटाइलकोलिन। सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन इनर्वेटेड बाय योर पैरासिम्पैथेटिक और यू कैन से सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्यों, दोनों से रहते, पैरासिम्पैथेटिक से ही रहते और सिंपैथेटिक से, यानी कोई भी ऑर्गन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन दे हैव इनर्वेशन बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम and sympathetic nervous system, okay, parasympathetic by release of acetylcholine and sympathetic by release of noradrenaline, पोस्ट वाले, और प्री में तो सबके जगह निकोटिनिक रिसेप्टर पे ACH ही है, ओके, हर जगह, सिर्फ सिंपैथेटिक में यहाँ बदलता आपका स्वेट ग्लैंड और, ओके। अब ये डुअल सप्लाई क्यों रहेगा, ओके, बेसिकली मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जो PNS SNS जो भी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टू मेंटेन द होमियोस्टैसिस, बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये डुअल सप्लाई रहता है, राइट। जैसे आपका हार्ट रेट हो गया, आपका रेस्पिरेटरी रेट हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपके जो आंखों के प्यूपिल है वो डायलेट होना है या उसको स्मॉल होना है, आपका स्वेटिंग हो गया, जीआई सिक्रीशन हो गया, ये जो एक्सोक्राइन फंक्शन है, स्वेटिंग होना, जीआई सिक्रीशन करना, तो ये क्यू डुअल फंक्शन दोनों इसका सप्लाई रहेगा। बेसिकली क्या होता है कि इन केस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वी डोंट थिंक अबाउट, हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि अभी मैं भाग रहा हूँ तो मुझे आपका हार्ट रेट बढ़ाना है, अब मैं स्लो हो गया मुझे आपका हार्ट रेट कम करना है, अब मेरा रेस्पिरेटरी रेट मुझे कम करना है। आप भागोगे तो हार्ट रेट बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। आपका प्यूपिल, जैसे ही आपने अंधेरे में देखा तो आपका प्यूपिल डायलेट होके देखना चालू करेगा, उजाले में आएगा तो कंस्ट्रिक्ट होके देखना चालू करेगा, राइट। सो ये जो एक्शन मेंटेन होता है, क्यों होता है कि दोनों एक्शन है उसके, राइट, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है, डुअल एक्शन है, ओके। सो ये जो है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को एक, जैसे लाइट को रहता है ना ऑन और ऑफ बटन, जिसको हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। सो बेसिकली जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, इनको एक एडिशन वाला बटन है और एक सब्सट्रैक्शन वाला बटन, स्विच ऑफ और स्विच ऑन वाला बटन है इसको। तो एडिशन जो करता है ऐड, दैट इज द सिंपैथेटिक सिस्टम, और सब्सट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ओके। यानी ऑन हो गया या ऑफ करना है, ऑफ करना है यानी कम करना है, ओके, ऑन करना है यानी ज्यादा करना है। आपका हार्ट रेट बढ़ा देना है तो क्या करना है, सिंपैथेटिक। आपका हार्ट रेट कम करना है तो क्या करना है, कम करना है, बंद नहीं करना है आपको, राइट, उसको नॉर्मल बेसलाइन पे लाना है। सो ये दोनों कौन कंट्रोल करता है, आपका ऑटोनॉमस। सो उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी चाहिए और पैरासिम्पैथेटिक, सो दैट इज व्हाई इट्स अ डुअल, इट इज द डुअल। नाउ वी कैन ऐड द ड्रग। अब हम लोग स्टार्ट देख सकते हैं कि कैसे ऐड करेंगे। आप क्या करोगे, आपने देखा है ये डुअल नर्व सप्लाई है, यू कैनॉट ब्लॉक बोथ द निकोटिनिक रिसेप्टर। आप यहाँ के और यहाँ के सब दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अगर आपने निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉक कर दिए, ओके, क्या फायदा, आपने पैरासिम्पैथेटिक भी ब्लॉक कर दी और आपने सिंपैथेटिक भी ब्लॉक कर दी। इट मीन्स दैट यू आर एडिंग ऑल्सो एंड यू आर सब्सट्रैक्टिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आप 10 रुपये दे रहे हो और आप 10 रुपये वापस ले रहे हो, कुछ किया आपने, कुछ नहीं किया। इसी तरह से अगर आपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के दोनों निकोटिनिक रिसेप्टर ही बंद कर दिए या दोनों चालू कर दिए तो आपने कुछ किया, कुछ नहीं किया। इट मीन्स दैट यू आर डूइंग नथिंग, यू आर डूइंग नथिंग। सो बोथ द एक्शन आपकी यूजलेस हो जाएगी। ये भी आप ब्लॉक कर दोगे और ये भी ब्लॉक कर दोगे, इसको स्टिमुलेट करोगे और इसको, दोनों को आप ना स्टिमुलेट कर सकते
दोनों को आप एक टाइम पे ना इनहिबिट कर सकते। सो इफ यू वांट द रियल एक्शन इन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, क्या करना है आपको? यू हैव टू ब्लॉक वन एंड स्टिमुलेट अदर। क्या करना है आपको? यू हैव टू ब्लॉक वन एंड स्टिमुलेट अदर। यही आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा। ओके, जो भी ऑर्गन की आपको एक्शन चाहिए, उस एक्शन के लिए एक आपको सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करना है और दूसरी को आपको स्टिमुलेट करना है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट आर द एक्शन। एक्शन करने के लिए वेन एवर यू आर यूजिंग द ड्रग, you cannot switch on or switch off both the parasympathetic and sympathetic. okay, you have to एक तो आपको ब्लॉक करो और दूसरे को स्टिमुलेट करो। okay, so this is all about how we take the action. okay, now अब जब आप एक्शन करते हैं आपके ड्रग, तो आपको रिसेप्टर चाहिए, सिंपैथेटिक रिसेप्टर। अब हम लोग रिसेप्टर पढ़ते हैं। Now, receptor. What are the types of receptor? So, sympathetic or parasympathetic. One is called parasympathetic receptor. Or sympathetic receptor. पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर आपको ऑलरेडी पता है। पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर की जगह आपका मेन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है यहाँ पर? एसिटिल कोलिन, ये आपका मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। और यहाँ पर कौन सा है आपका? दैट इज कॉल्ड नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, ये हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। सो दिस पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर, there are two types. One is called nicotinic and another is muscarinic. Another is muscarinic receptor. Now this nicotinic receptor, they are again of two types. Nicotinic neuronal receptor, nicotinic neuronal receptor, और दूसरा है nicotinic muscarinic receptor, skeletal muscle पे जो एक्ट। So nicotinic neuronal receptor and nicotinic, that is called muscle receptor. अब ये जो निकोटिनिक न्यूरल रिसेप्टर है जो आपके पैरासिम्पैथेटिक के है, क्या क्या करते हैं बेसिकली? दे प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ योर, जो भी आपकी ऑटोनॉमिक गैंग्लियन रहेंगे, क्या करते हैं वो? दे डिक्रीज द रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन। दे डिक्रीज द रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन। ये पैरासिम्पैथेटिक है, स्लो करना है आपको, राइट? एड्रिनल मेडुला से भी क्या करेगा ये, राइट? सो एड्रिनल मेडुला से भी क्या करेगा? डिक्रीज रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन। सेल बॉडी से एसिटिलकोलिन कम कर देगा, एपिनेफ्रिन रिलीज कम कर देगा, राइट? सो न्यूरोट्रांसमीटर का जो फंक्शन है इसका, ये जो आपके मस्कुरेनिक रिसेप्टर है वो कहाँ काम करते हैं? एट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उसका, क्या करते हैं यहाँ पर वो? कॉन्ट्रैक्शन। दे कॉजेज द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, न्यूरोमस्कुरेनिक रिसेप्टर। पैरासिम्पैथेटिक के बारे में चल रहा है हमारा, राइट? सो बोथ दिस निकोटिनिक रिसेप्टर, ये जो है आपके निकोटिनिक रिसेप्टर कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट बाय लिगेंड गेटेड चैनल। लिगेंड गेटेड क्या रहता है ये लिगेंड गेटेड चैनल? आपका ये जो एसिटिलकोलिन जो है, विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ रिसीव बाय द रिसेप्टर, और रिसेप्टर का क्या होगा? जैसे ही वो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर पे आ जाएगा, देन देयर इज अ इनफ्लक्स, देन देयर इज अ इनफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयन, देन देयर इज अ इनफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयन, और उसके बाद डिपोलराइजेशन, इम्पल्स चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिपोलर। ये हो गया आपका लीजेंड गेटेड निकोटिनिक रिसेप्टर।
अब ये जो आपके मस्क्यूरेनिक जो रिसेप्टर है, दिस मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर दे आर M1, M2, M3, कुछ M4 और M5 भी है. ओके, so this M1 receptor, okay, this muscarinic receptor, one CNS brain, second आपका क्या रहेगा, हार्ट. ओके, ये कहाँ एक्ट करेगा, दैट इज ऑन द हार्ट. ओके, सो M1 रिसेप्टर क्या करता, एक्साइटिंग रिसेप्टर है, एक्साइटमेंट वाला है, आपके ब्रेन का एक्साइटेशन या आपके गैस्ट्रिक CNS और ENS का एक्साइटमेंट करना, राइट, स्टिमुलस करना, यानी आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ाना, ये आपका M1 रिसेप्टर करेगा, एसिड सिक्रीशन. M2 रिसेप्टर, टू रिसेप्टर, आपका पहला ब्रेन, सेकंड हार्ट, आपको इस तरह से याद रखना है. सो दिस M2 रिसेप्टर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ये क्या करता है, इट डिक्रीज द हार्ट रेट, it decrease the heart rate, specially act on the SA node. कहाँ एक्ट करता है वो, हार्ट के SA नोड पे. अगर वो हार्ट रेट डिक्रीज कर रहा है तो निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है कि पॉजिटिव, डिक्रीज का निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, राइट. AV कंडक्शन भी वो डिक्रीज करेगा. ओके, सो इसको बोलते हैं निगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट, negative dromotropic effect. But this M2 receptor doesn't act on ventricle. ये बहुत important है, ventricle या Purkinje fiber, यहाँ पर वो कोई एक्शन नहीं करेगा. ओके, दैट इज वाई इसका कोई भी आइनोट्रॉपिक इफेक्ट नहीं है. ओके, M2 रिसेप्टर का कोई भी आइनोट्रॉपिक रिसेप्ट नहीं है, क्योंकि वेंट्रिकल और परकिंजे मसल पे, ओके, यहाँ पर आपका कौन सा सिस्टम काम करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यहाँ पर काम नहीं करता है, राइट. आराम है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करके वेंट्रिकल का ब्लड फ्लो नहीं बढ़ाना है, तो यहाँ पर ये सारी आपका हार्ट रेट कम करके आपको नॉर्मल कर देना, आपका हाँ AV कंडक्शन करके आपका नॉर्मल, सारी चीज़ें लो लेवल पर आके नॉर्मल करना है. तो ये जो निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक और ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट है, ये कौन करता है आपका, दैट इज कॉल्ड M2 रिसेप्टर. M3 रिसेप्टर ये क्या करता है, आपके स्मूथ मसल जो है आपके, किसके, ब्रोंकियोल के, उनका स्पाज्म, ये भी कम कर रहा है. कम कर रहा है ना, बेसिकली हम लोग लिखते डायमीटर ऑफ ब्रोंकियोल जो है वो कम कर रहा है, राइट. आपके जो प्यूपिल है, स्पिंक्टर प्यूपिल जो मसल है, उनको छोटा, सारी चीज़ें कम करना है. डिक्रीज डायमीटर ऑफ प्यूपिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस. देखो सारी चीज़ें कम हो रही है, M2 रिसेप्टर और M3 रिसेप्टर. और क्या करेगा, राइट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूरिनरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड यूरिनरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर, जिसको हम लोग यूरिनेशन होगा. यूरिनेशन क्यों होता, ब्लैडर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो यूरिनेशन होगा. क्या होगा, अगर ब्लैडर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो क्या होगा, यूरिनेशन होगा, राइट. ओके, सो सारी जो आरामदायी वाली चीज़ें हैं आपकी, पैरासिम्पैथेटिक, प्यूपिल का ये करना, यूरिनेशन का ब्लैडर कॉन्स्ट्रक्शन करना, राइट, एक्सेप्ट सारे जगह पर वो क्या करेगा, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन करेगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, एक्सोक्राइन ग्लैंड. हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो रहता, उनका इनके सिक्रेशन कौन करता, आपका सिंपैथेटिक कंट्रोल है, वो कौन करेगा, आपका सिंपैथेटिक कंट्रोल है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर M3. M3 कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल. क्या कर रहा है वो, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ muscle. But in blood vessel में तो स्मूथ मसल रहते हैं, बट इन केस ऑफ ब्लड वेसल इट डजंट एक्ट ऑन स्मूथ मसल. तो ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वेसल का वैसोडाइलेशन कैसे होता, बिकॉज M3 रिसेप्टर दे आर प्रेजेंट ऑन एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल. एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड, यहाँ रहेंगे वो, ये मसल पे नहीं रहेंगे, दे आर प्रेजेंट ऑन एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल. और ये एंडोथेलियम
नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करेगा स्टिमुलेट होने के बाद, और इस नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से क्या होगा, वैसोडाइलेटेशन, दैट इज कॉल्ड वैसोडाइलेटेशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड M3 रिसेप्टर. तो ये हो गया आपके M3 रिसेप्टर. ओके, नाउ M4 and M5 they are for which one, that is called excitation. वो भी CNS के रिसेप्टर है. M4 M5 they are called CNS excitation वाले रिसेप्टर है. Your which one, M4 and M5. Okay, now these are lesion gated. What about the muscarinic? Muscarinic are G protein coupled. G protein coupled बोलते हैं इनको, यानी इनको क्या लगता है, सेकेंड मैसेंजर लगेगा. इनको क्या लगेगा, सेकेंड मैसेंजर लगेगा. राइट, नाउ दिस, ये हो गया पूरे आपके पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर. अब लास्ट हम लोग देखते हैं सिंपैथेटिक रिसेप्टर. सिंपैथेटिक रिसेप्टर दे आर अल्फा, बीटा एंड डोपामिन रिसेप्टर. हो गया. फिर उसके बाद हम लोग का अल्फा रिसेप्टर, दे आर क्लासिफाइड इनटू अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर. ओके, और दिस अल्फा हम लोग अभी किसके पे, सिंपैथेटिक रिसेप्टर पे काम कर रहे हैं. राइट, सिंपैथेटिक यानी बेसिकली हम लोग जब डर जाते हैं. राइट, सो देयर इज, एकदम से आंखें आपकी बड़ी हो जाएगी, प्यूपिल. राइट, सो प्यूपिल में क्या होगा, अल्फा 1 रिसेप्टर में मिड्रिएसिस होगा. क्या होगा, देयर इज द मिड्रिएसिस होगा. राइट, आप जब किसी को देखते, आप जब डर जाते, तो आप का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, या आप थक जाओगे तो आपका ब्लड सप्लाई पेल हो जाओगी, आपकी स्किन पेल हो जाएगी. राइट, सो बेसिकली देखो, पेल कब होता है, जब आपको ब्लड सप्लाई, बिकॉज इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल, कहाँ पर की, स्किन पर की, और आपके GIT की. राइट, स्किन पर की अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो आप पेल हो जाओगे. GIT पर की तो क्या होगा, हम लोग जब कुछ बड़े बड़े काम करते हैं तब डाइजेशन ऑफ फूड थोड़ी चालू रहता है. राइट, हम लोग जब भागते हैं तब डाइजेशन थोड़ी होता है. राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पर तब सिक्रीशन नहीं होगा. वेन का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसीलिए तो थक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेन. ओके, whenever you are running on, whenever you are doing flight and what is that called, fight response, तो यूरिनेशन होता है क्या तब, नो इट्स नॉट. राइट, तो आपका जो ब्लैडर का स्पिंक्टर है, स्पिंक्टर ऑफ ब्लैडर, जो वहाँ पर दैट इज कॉल्ड, ये हो गया था, दैट इज कॉल्ड रिलैक्स हो गया था. यहाँ पर क्या होता, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता. यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. इसकी वजह से आप यूरिन नहीं कर पाओ. ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए. राइट, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स से अल्फा 1 आपका काम कर रहा है, तो ग्लाइकोजन का यूज होगा. राइट, लीवर में ग्लाइकोजन लाइसिस होगा. राइट, किडनी का रेनिन रिलीज कम हो जाएगा. राइट, सो दीज आर सम ऑफ द एक्शन ऑफ योर अल्फा 1 रिसेप्टर. अल्फा 2 रिसेप्टर, ओके, दे बेसिकली डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन. डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, और ऐसा बोलते हैं कि दे आल्सो डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर आपके आंखों में. राइट, दे अगेन डिक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, अल्फा 2. ओके, अल्फा 1 एंड अल्फा 2. ओके, दीज आर योर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर. अब हम लोग देखते हैं दैट इज कॉल्ड बीटा रिसेप्टर. ओके, सो उसके बाद फिर डोपामिन, और उसके बाद फिर हम लोग रुक जाते हैं. बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 1, और दूसरा आपका कौन सा, दैट इज कॉल्ड बीटा 2, और एक है आपका डोपामिन. सो बीटा 1 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर, एक बीटा 3 भी है. बीटा 1 रिसेप्टर दे एक्ट ऑन हार्ट. ओके, एंड बीटा 2. ओके, पहले हम लोग बीटा 2 देखते हैं. अल्फा का आप लोगों ने देखा था, अभी बीटा का देखो उल्टा है. हार्ट पे कैसे करता है वो, ऐसे नोड को वो स्टिमुलेट कर. अब ये सिंपैथेटिक है तो हार्ट रेट बढ़ाएगा. ओके, सो पॉजिटिव क्रोमोटॉपिक इफेक्ट. AV नोड का कंडक्शन बढ़ाएगा, पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक, पॉजिटिव क्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है
बीटा रिसेप्टर जो सिंपैथेटिक एक्शन है वो आपके वेंट्रिकल पे और पर्किंजे फाइबर पे होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ये आपके सिंपैथेटिक इसमें नहीं था, दैट इज पॉजिटिव। ये हो गया आपके बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे, ओके। अब बीटा 2 रिसेप्टर जनरली दे आर नॉट रियली इनर्वेटेड, आपके ब्लड वेसल का रिलैक्सेशन उल्टा रहता है ये थोड़ा बहुत, ओके। सो रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल रिलैक्सेशन करेंगे, राइट। ब्रोंकियल स्मूथ मसल का भी रिलैक्सेशन करेंगे, ब्रोंकियल स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन करेंगे, राइट। ब्रोंकियल का रिलैक्सेशन करेंगे, पैंक्रियास से इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन करेंगे। इंक्रीज इंसुलिन क्यों? बिकॉज जितना इंसुलिन रहेगा उतना ग्लूकोज का यूज होगा, अपटेक ज़्यादा होगा, क्योंकि इंसुलिन का काम ही है ग्लूकोज को लेके जाए करके। और लिवर ग्लाइकोजन लाइसिस, क्योंकि उनको क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, राइट। ये हो गया आपका बीटा 2। एक और रिसेप्टर रहता है बीटा 3, दैट इज फॉर लिपिड लाइसिस, या जिसको हम लोग बोलते हैं लिपोलाइसिस, ओके। And your last one is which one? That is called dopamine receptor, okay, that is called dopamine receptor. This dopamine receptor इसका पेरिफेरल रिलीज रहता, सेंट्रल रिलीज नहीं रहेगा, इसका सिर्फ पेरिफेरल रिलीज है, सेंट्रल रिलीज इसका है नहीं है। लो डोज में, मॉडरेट डोज में और हाई डोज में इसका रिलीज होगा। अगर लो डोज में अगर इसका रिलीज हुआ डोपामिन, तो क्या करेगा ये डोपामिन? लो डोज में इट रिलैक्स द विसरल ब्लड वेसल, रिलैक्स ब्लड वेसल। अगर मीडियम डोज में अगर ये रिलीज हुआ तो इट स्टिमुलेट, इट्स अ प्रीकर्सर, इट स्टिमुलेट द बीटा रिसेप्टर। और अगर हाई डोज में होगा देन इट स्टिमुलेट द अल्फा रिसेप्टर। सो देखो आपका ये डोपामिन कैसा है, लो डोज में रिलैक्सेशन ऑफ विसरल ब्लड वेसल है, लेकिन अगर मीडियम डोज में अगर हुआ तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा, और हाई डोज में रिलीज हुआ तो ये अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और बीपी बढ़ाएगा, ओके। सो हाउ टू यूज द ड्रग? स्टिमुलेट, यूजुअली स्टिमुलेट देम विथ एगोनिस्ट ड्रग, या ब्लॉक करो उसको एंटागोनिस्ट, ओके। सो देयर आर टू वे, यू कैन स्टिमुलेट बाय यूजिंग एगोनिस्ट ड्रग और यू कैन ब्लॉक बाय antagonist drug. So blocking by antagonist drug is a good choice because they have a less side effect, because they have the less side effect, okay. So कौन सी दो एक्शन आपको ड्रग यूज करने के लिए? एक तो आप क्या करो, स्टिमुलेट करो एगोनिस्ट से, या दूसरा क्या करो, ब्लॉक करो एंटागोनिस्ट से। So blocking by antagonist is the good one because they have a less side effect. So this is how generally this is called pharmacology of your autonomous nervous system. In next lecture we will see the classification of the drug and how will you remember the drug, okay.